Hello student, this is Aishwarya Katre. In this lecture, we will study the unit 2 of a partial differential equation. Topics are Cauchy-linear equations, non-linear first order partial differential equations, genesis of second order partial differential equation, and the classification of second order partial differential equation. Let's start with first topic, Cauchy-linear equation. Let's start Cauchy-linear. Then we know the Cauchy-linear equations defined by P of x, y, z, zx plus Q of x, y, z, zy equals to R of x, y, z. Then gives an equation number. So, and also P square plus Q square plus R square is non-zero. Then it is the solution of z of xy. It is a solution of z of xy, and where p, q, r are the continuous functions. Where इसमें क्या बोलेंगे? Where p, q and r are continuous functions given है of a differentiable function x, y and z. देन बाद में बोलेंगे हमने सॉल्यूशन लिया है z ऑफ एक्स वाई का. इट इज अ सरफेस डिफाइंड बाय द इंटीग्रल सरफेस. देन बोलेंगे z इक्वल्स टू z ऑफ एक्स वाई इन अ एक्स वाई जेड प्लेन स्पेस. इन एक्स वाई जेड स्पेस. व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस सरफेस? वी नो द डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेटेड बाय द रेडियंट, एंड दिस इज द नॉर्मल सरफेसेस. हमने डायरेक्शन रेशियोज क्या लिए हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर zx, zy and -1. These are the direction ratios of the normal surface. And hence the equation 1 दिया है. Hence the equation 1 state the condition. कौन सी condition? State the conditions that the integral surface such that at each point then the dot product of this one, किस का डॉट प्रोडक्ट करेंगे? P, Q, R and ZX, ZY and -1. हमने P, Q, R और उसके साथ हमने डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो क्या मिलेगा हमें? P ZX plus Q ZY minus R equals to 0. This is the dot product of the equation and is equal to the 0. And this is the direction tangent. And also we know then the families of the space curve whose tangent at each point coincide with the characteristic directions P, Q, R at that point, and the given following system of the ordinary differential equations क्या आएंगी? क्या होती है ordinary differential? dx upon p equals to dy upon q and equals to dz upon r equals to dt से. And this is the system of three linear equation. That is dx upon dt equals to p बोलेंगे, dy upon dt equals to q बोलेंगे and dz upon dt equals to r बोलेंगे. Then gives an equation number 2. And also the ordinary differential equations, there passes through the characteristics curve. कौन से characteristics curve है? x equals to x of x0, y0, z0 and t, and y equals to y of x0, y0, z0 and t, and z equals to z of x0, y0, z0 and t. And the system of ordinary differential equations being a autonomous system, there will be the two parameter family of the integral curve. Hence there is two parameter family. कितनी? 2 parameter family of the family of a characteristics curve.
then every surface generated by the one parameter family of the characteristics curve in a integral surface. then next बोलेंगे हम कि हमने and we know the every integral surface is generated by the family of characteristics curve. Every integral surface is generated by the family of characteristics curve. Then the integral surface as given by z equals to z of xy and the consider any point कौन से पॉइंट लेंगे x0 y0 and z0 on a s and then let the solution is dx upon dt equals to p of x y z and z is a function of x and y and dy upon dt equals to q of x y z and z is a function of x y and when with the initial condition क्या है इनिशियल कंडीशन x इक्वल्स टू x0 y इक्वल्स टू y0 एंड t इक्वल्स टू 0 एंड गिवन बाय द x इक्वल्स टू x ऑफ t एंड y इक्वल्स टू y ऑफ t. देन द कंसीडर द थ्री डायमेंशन कंसीडर करेंगे हम x इक्वल्स टू x ऑफ t देन y इक्वल्स टू y ऑफ t एंड z इक्वल्स टू z ऑफ x ऑफ t एंड y ऑफ t बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y. then the given integral surface क्या आएगा dz upon dt equals to zx dx upon dt plus zy dy upon dt equals to p of x y z zx plus q of x y z zy equals to r of x y z and therefore the curve satisfied equation number 2. equation 2 देखेंगे वहां पे characteristics curve satisfied होगा and the point passes through the x0 y0 and z0. then एक थ्योरम देखेंगे इस पे थ्योरम है कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर कॉसी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने कंसिडर किया फर्स्ट ऑर्डर कॉसी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है p of x y z z x plus q of x y z z y equals to r of x y z and where p q are the continuous partial differential equations with respect to the x y z and p square plus q square plus r square is not equals to 0 and then value दी है यहाँ पे z equals to z0 of s be the prescribes along the initial curve क्या है delta 0 equals to x0 of s and y equals to y0 of s and x0 y0 and z0 being the continuously differentiable. And further dy0 upon ds p of x0 s y0 s z0 s minus dx0 upon ds into q of x0 of s y0 of s z0 of s is not equals to 0 and then there exists a unique solution z of xy defined in some neighborhood of the initial curve lambda 0 which satisfy the partial differential equations and the initial condition z of x0 s y0 is equals to z0 of s. ये थ्योरम है थ्योरम में हमें गिवन है फर्स्ट ऑर्डर कॉसी-लीनियर गिवन है तो हमें यहाँ पे z ऑफ एक्स वाई सोल्यूशन को हमें यूनिक दिखाना है. क्या दिखाना है इस थ्योरम में हमें यूनिक सॉल्यूशन दिखाना है z ऑफ एक्स वाई का. देन यूनिक सॉल्यूशन दिखाना है तो फर्स्ट हमने कंसिडर किया है हमारा गिवन कॉसी-लीनियर लिखा है और देन एज इट इज जो गिवन है हम फर्स्ट सब लिख लेंगे एंड इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे बाय द एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस सॉल्यूशन ऑफ द initial value problem for the system ordinary differential equations. There passes a characteristics curve. Then this is the characteristics curve कौन से x, y and z and gives equation 3 and through the point x0, y0, z0 characteristics curve है उसको कौन से through the point x0, y0 and z0 and then the system of ordinary equations to be the autonomous systems. There will be parametric family of integral curve and hence the two parameter family of the curve. Every surface is generated by one parameter family of characteristics curves is an integral surface. यहाँ तक समझा. देन क्या बोला हमने every surface is generated by one parameter
surface generated by one parameter family of a characteristics curve is an integral surface. Then सेकेंड पार्ट है, हम कॉन्वर्सली प्रूव करेंगे. देन उसके लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने जो पिछले कॉसी लीनियर में जो डेफिनेशन दी है वो हमने दी है dy0 ds p ऑफ x0s y0s z0 ऑफ s माइनस dx0 ds q ऑफ x0 ऑफ x y0 ऑफ s z0 ऑफ s एंड विच इज अ नॉन जीरो. देन यूज इक्वेशन 3. देन टू प्रूव करना है हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है z इक्वल्स टू z ऑफ x का. देन डिफाइंड बाय द इनिशियल कर्व लैम्बडा 0 विच सेटिस्फाइड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशंस. कौन सी, z ऑफ x0s y0s इक्वल्स टू z0 ऑफ s. एंड देन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल हमने लिखा, इक्वेशन देंगे 5 एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है वो लिख लेंगे हम जो भी है, एंड द इनिशियल कंडीशंस लिखेंगे एंड उस पे से x ऑफ x t इक्वल्स टू 0 फाइंड करेंगे और वो रहेगा नॉन जीरो. देन हमने क्या बोला है कि इक्वेशन जो 6 है उसमें फर्स्ट टू, इक्वेशन नंबर 6 में जो इक्वेशन फर्स्ट टू है उसको सॉल्व करेंगे एंड इन द टर्म ऑफ एस टी हमें एक्स वाई की जगह हम एस टी रखेंगे इन द नेबरहुड बाय द इनिशियल कर्व एट टी इक्वल्स टू 0. दो इक्वेशंस मिलेंगी एंड ऑल्सो हम कंसिडर करेंगे p ऑफ 5x प्लस q ऑफ 5y. इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 10 मिलेगा. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 ऑब्जर्व दैट s ऑफ xt प्लस sy/yt इक्वल्स टू s ऑफ t इक्वल्स टू 0 है एंड tx xt प्लस ty/yt इक्वल्स टू tt इक्वल्स टू 1 दिया, गिव्स एन इक्वेशन नंबर 11. इक्वेशन 10 और 11 ये जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशंस मिलेगा. एंड नेक्स्ट हम फाई ऑफ एक्स वाई को यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करेंगे. देन हम फर्स्ट बोलेंगे कि फाई ऑफ एक्स वाई इज नॉट यूनिट बोलेंगे इसको. तो हम देयर आर टू इंटीग्रल सरफेस विच इंटरसेक्ट अलोंग गिवन इनिशियल कर्व सी एंड बट थ्रू द point initial data curve pass through the only one characteristic implies that the characteristic has lie both of the surface. Hence the same family of the characteristics curve has to be on both the surfaces. Both the surface must be coincide and both are generated by the same family characteristics. So thus z equals to phi of xy is unique. हमें यहाँ पे phi of xy unique दिखाना है तो हमने बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया. हमने बोला नॉट यूनिक है बट हमें तो यहाँ यूनिक मिल गया, इसीलिए z इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई इज यूनिक, यही चाहिए था. देन हैंस प्रूव. नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे. सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द कॉसिलिनियर इक्वेशन z zx प्लस z y इक्वल्स टू 1 एंड कंडीशन दिए है x0 इक्वल्स टू s, y0 इक्वल्स टू s एंड z0 इक्वल्स टू 1/2 s एंड वे 0 is less than or equals to s is less than or equals to 1. Then the given cosilinear equation is zx plus zy equals to 1. Give the equation 1 with the initial condition is x0 equals to s, y0 equals to s and z0 equals to 1/2 s, where 0 is less than or equals to s is less than or equals to 1. Then first term here first करेंगे p of x y z equals to z, q of x y z equals to 1 and r of x y z equals to 1. वैल्यूज दी है zx जो भी मतलब zx के सामने जो है मतलब वो पुट करना है. ये है p, ये है q और ये वैल्यू है r की. देन नेक्स्ट करेंगे p ऑफ x0s y0s एंड z0s इक्वल्स टू z0 इक्वल्स टू 1/2 s. इनिशियल कंडीशन है. देन q ऑफ x0s y0s z0s. देन इनिशियल कंडीशन क्या दी है इसकी, इनिशियल कंडीशन है 1
1 है तो 1 ही रहेगा। देन आर ऑफ x0s y0s एंड z0s क्या है वैल्यू 1, तो 1 ही रहेगा। देन नाउ अपन डिफाइन करेंगे dy0 अपॉन ds p ऑफ x0 ऑफ s y0 ऑफ s z0 ऑफ s माइनस dx0 अपॉन ds q ऑफ x0 ऑफ s y0 ऑफ s एंड z0 ऑफ s। वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वैल्यू। देन नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y0 क्या है, s है। देन y0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy0 अपॉन ds क्या आएगा 1 एंड सेम x0 है s एंड x0 को डिफरेंशिएट करेंगे s से विथ रिस्पेक्ट टू s तो आएगा 1। यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ dy0 अपॉन ds कितना बोला हमने 1 एंड ये वैल्यू कितनी है 1/2 s माइनस dx0 ds कितना है 1 एंड q की वैल्यू भी कितनी है 1 देन इज इक्वल्स टू 1/2 s minus 1 and is not equals to 0. Then now there exists an integral. There exists an integral surface. There exists an कौन सा z equals to z of x y. Contain the initial data given by डेटा गिवन बाय। देन नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्टेन किया है यूनिक फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कौन सी है वो dx अपॉन dt और इसकी वैल्यू है p, dy अपॉन dt इसको बोलते हैं हम q एंड dz अपॉन dt इसको बोलेंगे r। देन दैट इज dx अपॉन dt p की वैल्यू z, dy अपॉन dt q की वैल्यू 1 एंड dz अपॉन dt r की वैल्यू 1 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट हमने बोला है कि विद द इनिशियल कंडीशन x ऑफ s0 इक्वल्स टू s, y ऑफ s0 इक्वल्स टू s एंड z ऑफ s0 इक्वल्स टू 1/2 s गिव्स एन इक्वेशन नंबर 4। देन नाउ dy अपॉन dt कितना है हमारा 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम dy इक्वल्स टू dt इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू t प्लस a देन गिव्स इक्वेशन 5 है। देन नेक्स्ट dz अपॉन dt को क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 1, इसको कैसे लिख सकते हैं dz इक्वल्स टू dt सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल्स टू t प्लस b गिव्स एन इक्वेशन नंबर 5b। देन नेक्स्ट 5b। देन नेक्स्ट on solving the initial condition equation number 4 we obtain from 5a and 5b that s equals to क्या है 0 plus a and 1/2 s equals to 0 plus b। then next a equals to क्या आया इधर s मिला एंड b इक्वल्स टू क्या मिला 1/2 s। देन इक्वेशन 5a एंड 5b बिकम क्या आएगा अब y इक्वल्स टू हम उसमें a एंड b की वैल्यूज रख देंगे 5a एंड 5b में तो y इक्वल्स टू t प्लस s एंड z इक्वल्स टू t प्लस 1/2 s गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6a एंड 6b। देन नाउ अब हमें इक्वेशन निकालना है x का। देन क्या होगा फिर dx अपॉन dt इक्वल्स टू z गिवन है। देन dx अपॉन dt z की वैल्यू क्या है t प्लस 1/2 5। देन सॉल्व करेंगे dx इक्वल्स टू t dt प्लस 1/2 s dt dx इक्वल्स टू t स्क्वायर x देन इंटीग्रेट t square by 2 plus 1/2 s into t plus arbitrary constants. Then applying initial conditions equation 4 is क्या आएगा s इक्वल्स टू 0 प्लस c इक्वल्स टू मिला 0 thus x इक्वल्स टू क्या है t स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 1/2 एस टी प्लस सी की वैल्यू है एस, देन गिव्स इक्वेशन नंबर 6c. देन सॉल्विंग 6a, 6b and 6c for s and t in the terms of x and y. Then we obtain first from 6a. क्या आएगा? s इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 6 से दिख रहा, s इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ हमें s लिखना है तो s इक्वल्स टू t की टर्म इधर जाएंगी तो y माइनस t गिव्स 7a. Then 7a equations in 6c becomes इक्वेशन नंबर 7a को हम 6c में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2. s की वैल्यू कितनी है? y माइनस टी इंटू टी प्लस y माइनस टी. देन सॉल्व करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू मिला है y/2 माइनस 1 इंटू टी. देन t की वैल्यू क्या मिली है? x माइनस वाई अपॉन ये टर्म इधर जाएंगी y/2 माइनस 1 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 8. देन नाउ हम इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, मतलब s इक्वल्स टू t की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में. क्या आएगा? y माइनस एक्स माइनस वाई. अभी हमने t की वैल्यू निकाली y/2 माइनस 1. देन सॉल्व करेंगे तो y²/2 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन y/2 माइनस 1. देन क्या आएगा? y²/2 y गेट कैंसल माइनस एक्स अपॉन y/2 माइनस 1. देन गिव्स इक्वेशन नंबर 8b. t की वैल्यू मिली, s की वैल्यू मिली. देन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ s एंड t इन 6b. तो क्या आएगा? z इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन y/2 माइनस 1 प्लस 1/2 y²/2 माइनस एक्स अपॉन y/2 माइनस 1. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 इंटू देन इसको 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू y/2 माइनस 1 एडजस्ट करेंगे y²/2 माइनस एक्स. देन नेक्स्ट ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस y प्लस y²/2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू y/2 माइनस 1. देन x माइनस ट्वाइस है प्लस y²/2 अपॉन 2 इंटू y/2 माइनस 1 एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. समझा यहां तक? कोई प्रॉब्लम है हमें? देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉन लीनियर हम किसे कहते हैं नॉन लीनियर. देन हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं f हैज एन कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द x, y, z, p, q and either we know the fp or fq. fp or fq are a non-zero functions, and then हम क्या बोलते हैं कि नॉन लीनियर को क्या बोलते हैं हम कि z p q इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल. ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी जो भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, p इज एन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड q इज एन ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट इज p को हम डेल z बाय डेल x बोलते हैं एंड q को हम बोलते हैं डेल z बाय डेल y. ये दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. पर नॉन लीनियर में क्या रहता है कि इसकी जो डिग्री रहती है वो 2 और मोर देन कुछ भी रह सकती है, 2 और 2 से ज्यादा. जैसे कि p² प्लस q² इक्वल्स टू 0 ऐसी भी हो सकती, या ट्वाइस pq प्लस थ्राइस q³ इक्वल्स टू 0 ऐसे भी हो सकती. इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन लीनियर. मतलब जिसकी ऑर्डर 1 हो और जिसकी जो डिग्री होती है वो 1 एंड मोर हो, उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन इसमें क्या बोला है इन्होंने कि
तो इस टॉपिक में क्या बोला है इन्होंने कि P, we know the P is a function of x, y, z and Q is a function of x, y, z. बट यहाँ क्या लिया है इन्होंने कि इन्होंने बोला है कि Q need not always be single valued functions of P, but it may be assumed that the one branch of the possible set of the solutions, that is Q को लिखा है इन्होंने Q of x, y, z, p इन अ p के फॉर्म में, p का फॉर्म भी यहाँ पे आएगा और उसे ही बोलेंगे यहाँ पे नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देन एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स विच पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस। क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है एंड बोला है कि विच पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस। विच पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस मतलब क्या, सिर्फ एक्स की वैल्यू है और बाकी जो वाई एंड जेड है वो हमें गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 0। देन द इनिशियल डेटा कर्व इज, क्या बोला है, x0 इक्वल्स टू s एंड y0 गिवन है क्या, नहीं, तो 0 एंड z0 इज ऑल्सो 0। एंड देन हमें पता है कि इनिशियल डेटा कर्व्स सेटिस्फाइड द इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, f ऑफ x0 ऑफ s, y0 ऑफ s, z0 ऑफ s, p0 ऑफ s एंड q0 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 बोला है। एंड also the strip function, also the strip condition is क्या रहती है, dz0 अपॉन ds इक्वल्स टू p0 dx0 ds प्लस q0 dy0 ds गिव्स इक्वेशन नंबर, नहीं इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं। देन यहाँ हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 0 इक्वल्स टू 1/2 p स्क्वायर प्लस p0 स्क्वायर प्लस q0 स्क्वायर प्लस सब टर्म्स p0 q0 की टर्म्स में आएंगी, यहाँ p0 माइनस s इंटू q0 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 3। एंड देन ऑल्सो इक्वेशंस 2 बिकम्स क्या आएंगे, यहाँ 0 dz0 by ds क्या दिया है, 0 इक्वल्स टू p0 इंटू 1 प्लस q0 इंटू डिवाइड y0 की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 आएंगी, तो इंटू 0। तो यहाँ क्या मिला है हमें, सिर्फ p0 इक्वल्स टू 0। देन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट इक्वेशंस वी गेट, इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p0 की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 1/2 q0 स्क्वायर प्लस माइनस s q0 इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2 q0 इंटू q0 माइनस s इक्वल्स टू 0। देन 1/2, देन फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला हमें, q0 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट है 1/2 q0 माइनस s इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स q0 एंड सेकेंड है q0 माइनस ट्वाइस s इक्वल्स टू 0, दैट इज q0 इक्वल्स टू ट्वाइस s। दो कंडीशंस मिल गई हमें। देन देर आर द 2 इनिशियल स्ट्रिप। देन फर्स्ट केस क्या लेंगे हम, केस नंबर फर्स्ट, यहाँ गिवन है x0 इक्वल्स टू v, y0 इक्वल्स टू 0, z0 इक्वल्स टू 0, p0 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 एंड q0 क्या बोला हमने, ट्वाइस v। एंड सेकेंड केस है x0 की वैल्यू s, y0 की 0 है, z0 की 0, p0 की also 0 एंड q0 की also 0। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या रहते हैं, dx अपॉन dt।
क्या है, p प्लस क्यू माइनस वाई, देन दैट इज कॉल्ड एफ पी। देन नेक्स्ट है dy बाई डी टी इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस एक्स, और इसको बोलते हैं एफ क्यू। मतलब जो गिवन फंक्शन है हमारा उसको हमने क्यू से डिफरेंशिएट किया तो हमें dy बाय डी टी मिलेगा। देन नेक्स्ट है dz अपॉन dt, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, p इंटू एफ पी प्लस क्यू इंटू एफ क्यू। देन नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगे हमें, p इंटू पी प्लस क्यू माइनस वाई प्लस क्यू p प्लस क्यू माइनस एक्स। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे dp अपॉन dt, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस एफ एक्स माइनस एफ जेड इंटू पी इक्वल्स टू, इक्वेशन में हम डालेंगे कि हम जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया है उसको फर्स्ट x से डिफरेंशिएट करेंगे विथ माइनस साइन एंड बाद में z से डिफरेंशिएट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय p। देन क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस वाई। देन dq अपॉन dt को सॉल्व करते हैं, माइनस एफ वाई माइनस एफ जेड इंटू क्यू। देन वैल्यू मिलेंगी p प्लस क्यू माइनस एक्स। देन देयरफॉर d बाई डी टी ऑफ x माइनस पी इक्वल्स टू 0 मिला है एंड d बाई डी टी y माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 मिला है। हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया है, जो हमने यहाँ पे dp अपॉन dt की वैल्यू इन dx अपॉन dt में पुट की है। यहाँ पे हमने इस दोनों इक्वेशन सेम है ना, ये वाली a और ये दोनों की RHS सेम है तो हमने LHS कंसिडर किया है। देन इसमें भी वही किया हमने, इसमें इक्वेशन नंबर कौन सा है, dq अपॉन dt एंड इक्वेशन dy अपॉन dt, इन दोनों की भी RHS सेम है तो LHS कंसिडर इक्वली है और हमने ये दोनों इक्वेशंस बनाए। देन केस फर्स्ट क्या बोलती है, केस फर्स्ट है हमारी कि Q0 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस है। देन सॉल्व करेंगे, देन वी नो द इक्वेशन, देन यूज एन इक्वेशन नंबर। देन यहाँ हम इक्वेशन नंबर 4, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे केस नंबर फर्स्ट की, तो हमें मिलेगा गिव द x इक्वल्स टू v प्लस पी एंड सेकेंड है y इक्वल्स टू q माइनस ट्वाइस v। देन वी ऑब्जर्व दैट d बाई डी टी p प्लस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस एक्स। देन यहाँ मिला है p प्लस क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू v इंटू टू द पावर t। देन नेक्स्ट सिमिलरली हमें सेम p प्लस क्यू माइनस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस v इंटू द पावर t मिला है एंड हेंस x इक्वल्स टू क्या है फिर, v ऑफ 2 e टू द पावर t माइनस 1, y इक्वल्स टू है v e टू द पावर t माइनस 1, p इक्वल्स टू मिला ट्वाइस v e टू द पावर t माइनस 1 एंड q इक्वल्स टू v e टू द पावर t प्लस 1। गिव्स एन इक्वेशन नंबर 5। देन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग in the equation for z and integrating then we get z में पुट करेंगे सब वैल्यू, तो 5/2 v स्क्वायर e टू द पावर ट्वाइस t माइनस 1 माइनस थ्राइस v स्क्वायर v टू द पावर e टू द पावर t माइनस 1। देन ऑन सॉल्विंग देन गिव द इक्वेशन नंबर 6। देन हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को, x एंड y को सॉल्व करेंगे। x एंड y की जगह हमने क्या रखा है, t एंड v, तो हमें t और v हमें इस इक्वेशन में t और v को इलिमिनेट करके x एंड y लाना है, तो इधर क्या आएगा e टू द पावर t इक्वल्स टू y। देन सॉल्व किया हमने इक्वेशन नंबर 5 को, सो t एंड s को इलिमिनेट करना है, क्या करना है, इलिमिनेट। then e to the power t y minus x upon 2y minus x and v equals to मिला है x minus twice y। देन वो वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर t एंड v इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा, तो क्या आएगा, वी गेट z माइनस 1/2 y
4x minus 3y is equals to 3. देन नेक्स्ट है केस नंबर 2. केस नंबर 2 में हमें सब वैल्यू 0 है, तो क्या आएगा इक्वेशन नंबर हमने इक्वेशन नंबर जो इक्वेशन नंबर 4 निकाला है उसे देखो, उसमें क्या आएगा गिव x इक्वल्स टू s प्लस p एंड y इक्वल्स टू q मिला है. देन ऑब्जर्व दैट d बाई डी टी इक्वल्स टू p इंटू p प्लस q माइनस y एंड इक्वल्स टू p प्लस q माइनस y. दिस इज नथिंग बट p प्लस q माइनस x इक्वल्स टू माइनस s टू द पावर t. एंड ऑल्सो सिमिलरली p प्लस q माइनस y इक्वल्स टू 0 दिया है. देन देयरफॉर p की वैल्यू कितनी है 0, q की कितनी है y, x की कितनी है s एंड यहाँ पे q इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या है s माइनस s टू द पावर t. हेंस s इक्वल्स टू दिया है x एंड e टू द पावर t इक्वल्स टू x माइनस y अपॉन x. देन dz बाई dt क्या आएगा dz बाई dt हम कैसे लिखते हैं, यहाँ आएगा y इंटू वाई माइनस एक्स. देन सॉल्व करेंगे तो s स्क्वायर e टू द पावर टॉइस t माइनस e टू द पावर t. देन ऑन इंटीग्रेटिंग एंड using the initial condition we get क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को z इक्वल्स टू s स्क्वायर अपॉन 2 e टू द पावर टॉइस t माइनस टॉइस e टू द पावर t प्लस 1 एंड यूजिंग देन इसमें इनिशियल कंडीशन डालेंगे तो s इक्वल्स टू s स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर t माइनस 1 होल स्क्वायर. एंड देन नेक्स्ट इलिमिनेट करेंगे s एंड t को. दिस इक्वेशन से s एंड t को इलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2. देन s मतलब x स्क्वायर बाय 2. देन e टू द पावर t मतलब x माइनस वाई अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो आएगा y स्क्वायर अपॉन 2. हेंस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.